बाय एडजॉइंट मेथड, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो ध्यान देना अच्छे से, टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। करेंगे आज के लेक्चर में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 8, 8 का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो आई होप कि सबको पता है कि 8 का रेसिप्रोकल होता है 1/8। रेसिप्रोकल ऑफ 8 इज नथिंग बट 1/8। सेम वे अगर 8 का रेसिप्रोकल 1/8 होता है, सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि a का इनवर्स क्या होता है, व्हाट इज इनवर्स ऑफ a, हाउ वी राइट इट? इनवर्स ऑफ a को हम लोग a इनवर्स लिखते हैं, a इनवर्स, राइट? इनवर्स ऑफ a इज a इनवर्स। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सेम है। रेसिप्रोकल ऑफ 8 क्या होता है? 1/8। अभी इनवर्स ऑफ a क्या होना चाहिए? 1/a होना चाहिए था, बट मैट्रिक्स में ये वैलिड नहीं है। सो 1/a को हम लोग क्या लिखते हैं? वी राइट a इनवर्स। अभी आपको पता है कि whenever we multiply a number by its reciprocal, we always get 1. If we multiply a number by its reciprocal, we always get 1. Similarly, if we multiply a matrix by its inverse, you always get an identity matrix. When you multiply a matrix by its inverse, you always get an identity matrix. Remember this part. Multiplication of a matrix along with its inverse is always provides you an identity matrix. Multiplication of a matrix along with its inverse always gives us what? Always gives us identity matrix. तो एक कॉन्सेप्ट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का, जैसे 8 का रेसिप्रोकल 1/8 होता है, वैसे a का इनवर्स होता है 1/a का इनवर्स होता है a इनवर्स। किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो तो 1 मिलता है। सिमिलरली किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? i। क्या मिलेगा? हमेशा i। i is nothing but identity matrix. I hope we all know the definition of identity matrix. A square matrix in which all the diagonal elements are 1, right? So कवर करते हैं, आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि a का इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स, and what fundamentally we have to remember that whenever we multiply a matrix by its inverse, you always get an identity matrix. So a into a inverse is always equals to i. ठीक है? अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है इसका? डेफिनेशन पे आता हूं। डेफिनेशन बोलता है कि मान लो if a is a square matrix, if a is a square matrix of order m, if a is a square matrix of order m and there exists another square matrix and there exists another square matrix of same order such that AB is equals to BA is equals to I, where B is actually 1 upon A, but 1 upon A is not valid. So what we write? B upon A, 1 upon A को क्या लिखते हैं? A inverse. If A is a square matrix of order n such that if A is a square matrix of order m क्यों बोला मैंने? n cross m होगा, same order square matrix है, and there exists another square matrix of same order such that AB is equals to BA is equals to I, then we say that A is a, then what we can say that then B is called inverse of A, and symbolically
symbolically B is denoted as A inverse. B का मतलब एक्चुअली A इनवर्स होता है, मतलब एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए. Therefore, we can say that A into A inverse, which is equals to B के given A inverse into A, which is equals to I. ऐसा रहेगा तब जाके आंसर आएगा. So this is a relation we are going to get. Inverse का relation है A into A inverse is same as A inverse into A, and both is equal to what? I. So AB is equals to BA is equals to I is same. A into A inverse is equals to A inverse into A is equals to I. So remember this part. If AB is equals to BA is equals to I, then we can say that B is nothing but inverse of A. And symbolically, what can we write in place of B? B can be replaced with A inverse. If you want to use this as a fundamental in our solution in our sums, so what we are going to use instead of it, we are going to use A into A inverse is equals to A inverse into A is equals to I, because the question demands to find A inverse. So instead of using B, we can use A inverse in place of B. So what is the relation? What is the concept we are going to get? What is the equation we are going to get? That A into A inverse is always equal to I, and similarly A inverse into A is also equals to I. So you have to remember this equation whenever you are going to find inverse of a matrix. So A into A inverse is equals to A inverse into A is equals to I. The A inverse is actually 1 upon A, but 1 upon A is not valid in matrix. So what we write in place of 1 upon A, we write A inverse. याद रखना इतना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. So AB is equals to BA is equals to I. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है ना, अगर AB is equals to I आता है तो समझ जाना कि यहाँ पे इनवर्स का बात हो रहा है, जहाँ पे मैं B को क्लियरली बोल सकता हूँ कि वो इनवर्स ऑफ A है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं? A इनवर्स. याद रहेगा अच्छे से ये. और कुछ इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे जो हम लोग को याद करना है. इनवर्स कभी में एग्जिस्ट करेगा. When can you say the following matrix has inverse? हाँ, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता. मैंने पहले ही बताया रहेगा शायद आपको ये. सबसे पहला नोट याद रखेंगे, इफ A inverse exists only when determinant of A is not equal to 0. A inverse तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा. A inverse exists only when determinant is not equal to 0. A inverse exists only when determinant is not equal to 0. दूसरा पॉइंट है, if A is a square matrix, if A is a square matrix, then A inverse, if A is a square matrix, then A inverse is always unique. If A is a square matrix, then A inverse is always unique. So I'll read all this point. This is a pure declaration about inverse of a matrix, and these are two important points that we are going to use in our sums right now. So what is the definition of inverse? Simply remember the equation. What is the equation? AB is equals to BA is equals to I, where B stands for inverse of A. B can also be written as A inverse, and the equation get translated to A into A inverse is equals to A inverse into A, which is equals to I. 2 points that we have to remember while finding inverse. The first one, inverse exists only when determinant is not equal to 0. And second, if A is actually a square matrix, then its inverse is always unique. Then its inverse is always unique. So these are the points that we have to remember while finding inverse of a matrix. So I hope कि लोगों को इतना समझ में आ गया अच्छे से, और प्रॉपर्ली आवाज और सब आ रहा है बराबर, ठीक है? So सुजल आवाज आ रहा है बराबर, समझा ये पार्ट सुजल आपको अच्छे से? प्रथमेश इशू है? हाँ सर. समझा प्रथमेश अच्छे से? हाँ हाँ. फाइन. सर यूनिक मतलब क्या? हाँ, यूनिक मतलब यूनिक मतलब ये बताना बहुत जरूरी है. सुनो, हाँ ये मैं बताता हूँ. यूनिक मतलब क्या होता है? मान लो कि अगर A आपका मैट्रिक्स है और इसके अंदर आंसर है 1 2 3 4, तो आपका A इनवर्स अलग होगा, नॉट सेम. यही नहीं होगा सेम, यही नहीं होगा, अलग होगा. तो A इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक, मतलब A इनवर्स विल नॉट कॉपी A. अगर A जो मैट्रिक्स है ना, A इनवर्स A नहीं आएगा, A इनवर्स विल बी डिफरेंट.
A inverse will be some other matrix instead of 1 2 3 4. So unique मतलब different, unique मतलब some not same, right? So अगर हाँ A matrix is 1 2 3 4 तो A inverse कुछ अलग आएगा. A inverse will not come as same as A. A inverse will be different. हम लोग चेक करेंगे आगे चल के. फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं. Take the screenshot of this page, definition of inverse of a matrix. Now we will learn the first topic for today's lecture, that is how to find inverse by adjoint method. बहुत ही easy method है, तो पहले ये कवर कर लेते हैं हम लोग. इसका स्क्रीनशॉट ले तो आगे करूँ मैं, हटा दो इसको. ठीक है, तो हम लोग पहले ये भी चेक कर लेते हैं कि इनवर्स दो तरीके से निकलता है. पहला तरीका है इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, दूसरा तरीका है इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड और दूसरा तरीका है इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. देखो, अगर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा ना तो वो मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल. इफ A inverse exists, if A inverse exists, then matrix A is invertible. If A inverse exists, then matrix A is invertible. अगर A inverse निकलता है तो उस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं. now मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकलता है, जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है. तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल. ये चेक करना है कौन कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है. चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल. तो चेक कर लेते हैं हम लोग. पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं अच्छे से. क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है आज के लेक्चर का पहला. ये आपका शायद मिसलिनियस का सवाल है. देखो, ये चेक करना है कौन कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है. फाइंड which of the following matrices are invertible. Find which of the following matrices are invertible. ये पता लगाना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है. आपको पता है इन्वर्टिबल कब होगा? मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ A इनवर्स एग्जिस्ट. और A इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं रहेगा. आई होप सबको पता है. इधर लिख देता हूं मैं शॉर्टकट में, ध्यान देना. A is invertible if determinant of A is not equal to 0. याद रखना अच्छे से. A is invertible if determinant of A is not equal to 0. Determinant of A is not equal to 0. Determinant of A is not equal to 0. ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है इसका 1 1 1 1. इसका दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3 3 4 5 4 6 8. और थर्ड क्वेश्चन है sec theta tan theta sec theta. ये तीनों को चेक करना है कि इसका इनवर्स निकलता है कि नहीं. तो we need to find whether A inverse exists or not. ये चेक करना है कि इसका इनवर्स निकलता है कि नहीं. सबसे पहले मैट्रिक्स को नाम देंगे. Let A be the matrix. Let A be the matrix 1 1 1 1. ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं. Therefore determinant of A, डिटरमिनेंट जब निकालते तो अपना क्या आता है? वर्टिकल बार्स में आ जाता है एलिमेंट्स 1 1 1 1. थोड़ा बहुत आपने 11th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ा रहेगा. अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0. तो आप देख सकते हो रो 1 रो 2 आइडेंटिकल है, डायरेक्टली मैं 0 लिख सकता हूं. अगर आपको नहीं पसंद है ऐसा तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो ना. क्या जाता है सॉल्व करने में. सो लेफ्ट क्रॉस 1 माइनस राइट क्रॉस 1, तो 1 माइनस 1 0. क्या होगा? डिटरमिनेंट क्या आया? 0. सिंस determinant of A is equals to 0, A is non-invertible. इसका इनवर्स नहीं निकलेगा. A is non-invertible. समझा? सिमिलरली इस मैट्रिक्स को B बोल देता हूं मैं. इसको मैंने B बोल दिया और इसको जब सॉल्व करने का तरीका होगा डिटरमिनेंट ऑफ B.
सबको 3 क्रॉस 3 सॉल्व करने आता है. डिटरमिनेंट ऑफ बी विल बी व्हाट 1 2 3 3 4 5 4 6 8. फाइन, सॉल्व कर लेते हैं इसको डायरेक्टली शॉर्टकट में. तो 1 टाइम्स ऑफ 4 8 जा कितना 4 8 जा 32 minus 6 5 are 30 minus 2 times of 24 minus 20 plus 3 times of 18 minus 60. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 32 minus 30 is 2, then 24 minus 20 is 4 into 2 is minus 8, then this is plus 6. So again you got 8 minus 8 which is 0. So since determinant of b is also 0, you can say that b is non-invertible. b का भी inverse नहीं निकलेगा क्योंकि determinant 0 है. So inverse does not exist. Now move to third case. Third case में क्या हो रहा है, इसको हम लोग C बोल देते हैं. Let C be the matrix. Let C be sec theta tan theta and then sec theta. ठीक है, तो हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ सी निकालते हैं. देखो डिटरमिनेंट ऑफ सी विल बी क्या हो जाएगा, ये sec theta tan theta and then sec theta. ठीक है, सॉल्व कर लिया इसको तो कितना आएगा, लेफ्ट क्रॉस माइनस राइट क्रॉस, दिस विल गिव अस व्हाट sec theta into sec theta will be sec square theta minus tan square theta which is actually equals to 1. So guys, determinant क्या है, since determinant of C is not equal to 0, we can say that matrix C is invertible. मतलब C का इनवर्स निकलेगा. तो तीनों केस में सिर्फ C का इनवर्स निकलेगा, बाकी फर्स्ट 2 केस का इनवर्स नहीं निकलेगा. तीनों ही केस में सिर्फ C का इनवर्स निकलेगा, बाकी फर्स्ट 2 केस का इनवर्स नहीं निकलेगा. बहुत सिंपल था, आई होप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से. एक बार रीड कर लो इसको अच्छे से, एक बार चेक कर लो. तो कैसे निकालते हैं, कैसे पता लगाते हैं मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, आपने देख लिया क्लियरली वो. तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी कहलाएगा जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा. ठीक है, आप देख सकते हो थर्ड केस में आपका वैल्यू 1 आया which is not equal to 0, therefore C is invertible matrix. C is invertible matrix. So I hope कि ये वाला पार्ट क्लियर है लोगों को. तो we can move further. आगे कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं. Perfect. C is equals to 1. Perfect answer. आगे मूव करेंगे और आगे चेक करेंगे कि कैसे हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं. तो ये बहुत अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है. किस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, ये मैंने पहले ही बताया था. A inverse exists only when determinant is not equal to 0. So भाई इनवर्स को ही बोलते हैं इन्वर्टिबल. मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना मतलब उस मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल होना. So A is invertible if determinant is not equal to 0. If A inverse exists, then matrix A is invertible. So आगे करता हूँ मैं इसको, इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. फिर आगे हम लोग अभी टॉपिक कवर करेंगे. What are the ways of finding inverse of a matrix? By how many methods you can find inverse of a matrix? तो चेक करते हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कितने तरीके से निकाल सकते हैं. चेक करते हैं. We will learn the methods of finding inverse now. आज के लेक्चर में फर्स्ट मेथड कवर होना चाहिए, मेरा कोशिश होगा. देखते हैं. तो टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इनवर्स. मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इनवर्स. मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इनवर्स में सबसे पहला मेथड आता है इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. A इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. पहला मेथड आता है A इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड और दूसरा मेथड आता है A इनवर्स बाय
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा आता है ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये एक ही एक्सरसाइज के सम्स है, ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, दूसरा ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड और दूसरा ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ये टॉपिक हमको कवर करना आज के लेक्चर में, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो चाहते हैं सम पे चलते हैं। इसमें हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। हाउ टू फाइंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट, हाउ टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, हाउ टू फॉर्म कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स से कैसे हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाते हैं, एंड व्हिच फॉर्मूला वी यूज रियली टू फाइंड ए इनवर्स है। तो हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं। तो हाँ, एकदम स्लो जाना है हमें और एकदम अच्छे समझ के लेना है टॉपिक को कि हाउ डू वी फाइंड एक्चुअली इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। जब पेपर में सम आएगा तो ऐसा आएगा, फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड का कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं हम लोग, बट फॉर लर्निंग दैट व्हाट वी रिक्वायर कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर ऑफ एन एलिमेंट, वी रिक्वायर कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, वी रिक्वायर एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये सब आपको आना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे दैट इज इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। मूव कर रहे हैं आगे। तो सबसे पहला मेथड रहेगा अपना इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, और उसमें सबसे पहला डेफिनेशन आएगा आपका माइनर ऑफ एन एलिमेंट। डेफिनेशन का नाम है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। बहुत अच्छे से जानना, बहुत इजी है, इसे समझने की कोशिश करना। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, क्या नाम है डेफिनेशन का? माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो कैसे लिखेंगे इसको? इट इज डिफाइंड एज, minor of an element is defined as value of the determinant, defined as the value of the determinant, value of the determinant obtained by deleting minor of an element। minor of an element को हम लोग ना सिंबॉलिकली MIJ बोलते हैं, MIJ। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट MIJ, जैसे AIJ को एलिमेंट बोलते हैं वैसे MIJ को माइनर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम, the row and column in which the element Aij lies. It is defined as the value of the determinant. It is defined as the value of the determinant obtained by deleting the row and column in which the element Aij lies. It is denoted by Mij. It is denoted as Mij. It is denoted as Mij. हाँ, अभी ध्यान दे इसको निकालते कैसे। तो इसको ऐसा लिखते हैं बेटर। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij is given as Mij। मतलब A11 का माइनर M11, A22 का माइनर M22, A33 का माइनर M33। तो ध्यान देना अच्छे से। सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते, डेफिनेशन पढ़ो। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट obtained by deleting the row and column in which that element lies, in which the element Aij lies। एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। So let us take one example to understand minor of an element। Example, मान लो एक मैट्रिक्स लिया मैंने, एक मैट्रिक्स का एलिमेंट ले लिया 1 2 -2 7, 1 2 7 11। ठीक है, अब कितने एलिमेंट है यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। एलिमेंट कितने हैं? A11 1 है, A12 2 है,
A21 7 है, A22 11 है। कैसे निकालते हैं माइनर, ध्यान देना। Therefore M11, अब डेफिनेशन पढ़ो। Minor of an element is the value of the determinant obtained by deleting the row and column in which the element aij lies. तो आप जब भी जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालोगे ना, आपने किसका माइनर निकालना है, A11 का, उसके रो एंड कॉलम को छुपा दो या डिलीट कर दो। क्या दिख रहा है आपको रो एंड कॉलम को छुपाने के बाद? रो एंड कॉलम को छुपाने के बाद आपको क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो M11 is 11, वैल्यू ऑफ M11 is 11। सेम वे अगर मैं पूछूं M12, तो M12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपा दो, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपा दो, कितना मिलेगा, 7। M12 कितना मिला, 7। और दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ 7 is 7, डिटरमिनेंट ऑफ 11 is 11। सेम अगर मैं M21 निकालूं, M21, तो M21 क्या रहेगा, M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दे, क्या मिलेगा, 2। एंड फिर M22, तो M22 क्या रहेगा, M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपा दो, क्या मिलेगा, 1। तो ये है माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2। आई होप कि सबको समझ में हाउ टू फाइंड माइनर। इट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। द डिटरमिनेंट ऑफ 11 is 11, डिटरमिनेंट ऑफ 7 is 7, डिटरमिनेंट ऑफ 2 is 2, डिटरमिनेंट ऑफ 1 is 1. So minor of an element is a value of the determinant obtained by deleting the row and column in which the element aij lies. So M11 चाहिए। So M11 क्या है, minor of A11। So first row और first column को delete किया, क्या बचेगा, 11। So value of the determinant, 11 का determinant is 11 only. Value of the determinant obtained by deleting the row and column in which that element lies. So इस तरीके से हम लोग minor find करते हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया है, 2 क्रॉस 2 का। Now how do we read minor? How do we read minor? MIJ को read कैसे करते हैं? MIJ is nothing but minor of element AIJ। ऊपर लिख के दिया मैंने आपको ऑलरेडी। Minor of an element AIJ is given as MIJ, is given as MIJ। So इस तरीके से हम लोग minor find करते हैं। This is a way to find minor, right? एक और एग्जांपल 2 क्रॉस 2 का ले लेता हूँ, समझने की 3 क्रॉस 3 का ले लेता हूँ। Let us take second example। A is equals to 1 2 3 2 1 4 6 7 8। ना यहाँ पे 9 एलिमेंट है, तो जितने एलिमेंट से उतना माइनर निकलेगा, जितने एलिमेंट से उतना माइनर निकलेगा, याद रखना, जितने एलिमेंट से उतना माइनर निकलेगा। कितने एलिमेंट से, यहाँ पे 9 एलिमेंट है, सो 9 माइनर निकलेगा। सो लेट मी हेल्प यू विद 2 माइनर्स। 2 माइनर मैं बताता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे अपने पास, ओवरऑल अपने पास यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं। सो 9 एलिमेंट्स में से मैं कौन कौन सा माइनर निकालता हूँ, मैं फर्स्ट वाला निकाल रहा हूँ और मैं 8th वाला निकालता हूँ, बाकी आप कर लो, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाले का पोजीशन क्या है, A11, तो क्या मिलेगा, M11। क्या रहेगा M11, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन व्हिच द एलिमेंट लाइज। सो ये जो रो और कॉलम में लाएगा, तो उसका रो एंड कॉलम डिलीट करो। जैसे रो एंड कॉलम डिलीट किया, क्या बचेगा, 1 4 7 8। बट डिटरमिनेंट बोला ना, सो डिटरमिनेंट ऑफ 1 4 7 8, इसका डिटरमिनेंट चाहिए। तो भाई सॉल्व किया इसको, लेफ्ट क्रॉस माइनस राइट क्रॉस से कितना आ गया, 8 माइनस 28, लेफ्ट क्रॉस 8 राइट क्रॉस 28, so the answer is -20। so M11 कितना मिला, -20। सिमिलरली 8 का पोजीशन क्या है, A33, तो इसका माइनर क्या होगा, M33 निकालो M33। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट किया, मतलब ये रो और ये कॉलम डिलीट किया, तो क्या बचा है, 1 2 2 1, 1 2 2 1, क्या बच रहा है, 1 2 2 1। इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, 1 into 1 1, 2 into 2 4, 1 minus 4, the answer is -4। इस तरीके से आप बाकी 9 एलिमेंट्स के बाकी 7 एलिमेंट्स को भी माइनर फाइंड कर सकते हो। तो दिस इज अ माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज अ माइनर ऑफ 3 क्रॉस 3। वी आर गोइंग टू डील विद माइनर ऑफ 3 क्रॉस 3 मोस्टली, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से, पूछो, कुछ पूछना है तो पूछना है। इसमें माइनर में कुछ डाउट है किसी को, आई होप कि माइनर का कॉन्सेप्ट सबको समझा। सेकंड टॉपिक है अपना आज का, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। टॉपिक का नाम है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। तो माइनर को आप MIJ बोलते थे ना, तो कोफैक्टर को आप
कैपिटल ए आई जे बोलोगे। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड एज कैपिटल ए आई जे। कैपिटल ए आई जे मतलब कोफैक्टर। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ने का हम लोग को, ठीक है। सो कैपिटल ए आई जे is equal to capital A I J is cofactor, right? Is equal to -1 raised to I plus j into Mij. This is a formula of cofactor that we have to by heart anyhow. The minor of a cofactor of an element is nothing but capital Aij is equals to -1 raised to I plus j into Mij. So -1 is a coefficient. You all know that I is nothing but row number. I जो रहेगा वो रो नंबर रहेगा। सेम वे J जो रहेगा J वो रहेगा आपका J रहेगा कॉलम नंबर। और आप सबको पता है कि Mij क्या है। Mij जो है वो है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। Mij क्या है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij। तो ये Aij क्या होता है? एलिमेंट होता है। Mij क्या होता है? इसका माइनर होता है। और कैपिटल Aij क्या होता है? इसका कोफैक्टर होता है। सो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। Aij एलिमेंट इन I रो एंड J कॉलम, इसका माइनर Mij, इसका कोफैक्टर कैपिटल Aij। याद रखना अच्छे से। नो कोफैक्टर और माइनर सेम हो सकता है अगर ये 1 हो जाए तो, अगर आगे वाला जो कोएफिशिएंट है 1 हो जाए तो। अब ये 1 कब होगा? इसका कुछ केस है। वी आर गोइंग टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ रूट। नहीं समझा तो प्लीज मुझे पूछना। अच्छे समझा रहा हूं मैं, नहीं समझा तो प्लीज डाउट क्लियर करो अपना, ठीक है। सबसे पहला केस, इफ I plus j, अगर I plus j को मिला के इवन आया, अगर I plus j को मिला के पावर इवन आया, तो we can say that cofactor and minor are same। समझने की कोशिश करो कैसे। देखो अगर I plus j इवन आया, I plus j अगर इवन आया तो -1 टू इवन पावर, -1 को अगर इवन पावर दिया तो 1 हो जाएगा गाइस। और -1 को अगर इवन पावर 1 हो जाएगा तो Aij और Mij सेम हो जाएगा। वही लिखा है मैंने। अगर I plus j को मिला के इवन आया, अभी कौन कौन से केस में वो इवन आएगा? अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स लेता हूँ तो कौन कौन से एलिमेंट में I plus j इवन आएगा? A11 1 plus 1 2 इवन आया, A13 1 plus 3 इवन आएगा, A22 2 plus 2 इवन आएगा, A31 3 plus 1 4 इवन आएगा, A33 3 plus 3 6 इवन आएगा। तो ये पांचों एलिमेंट्स में 3x3 में I plus j इवन होगा, मतलब इसका माइनर और कोफैक्टर सेम होगा। सेकंड अगर पढ़ने जाए हम लोग, सेकंड का पता होता है। सेकंड ये बता रहा है कि इफ I plus j is equals to odd, अगर I plus j का वैल्यू ऑड हुआ तो -1 टू द ऑड पावर इज -1। तो कोफैक्टर और माइनर में क्या रहेगा? नेगेटिव रिलेशन रहेगा। तो Aij is equals to minus of Mij। Aij is equals to minus of Mij। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना है कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स का। क्या है फॉर्मूला कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स का? कैपिटल Aij is equals to -1 raised to I plus j into Mij। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज हेल्पफुल टू फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? कैपिटल Aij से। क्या फॉर्मूला है उसका? कैपिटल Aij is equals to -1 raised to I plus j into Mij। I रहेगा आपका रो नंबर, j रहेगा आपका कॉलम नंबर, और Mij क्या रहेगा? माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij। अगर I plus j इवन है तो कोफैक्टर और माइनर सेम होगा, और अगर I plus j ऑड है तो कोफैक्टर और माइनर में नेगेटिव रिलेशन होगा। क्या होगा? नेगेटिव रिलेशन। मूव करेंगे आगे। आई होप कि कोफैक्टर मैट्रिक्स सबको समझ में आ गया। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट याद रखना है, काम में आएगा क्या? अगर I plus j इवन तो माइनर कोफैक्टर सेम, अगर I plus j ऑड तो कोफैक्टर माइनस में नेगेटिव रिलेशन। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव फर्दर। टेक द स्क्रीनशॉट। डन एवरीवन? नाउ वी विल फॉर्म कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो अगला टॉपिक रहेगा मेरा कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम लोग ने माइनर का डेफिनेशन पढ़ लिया, हम लोगों ने कोफैक्टर का डेफिनेशन पढ़ लिया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज टू फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है?
मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स, बहुत ही अलग टाइप का डेफिनेशन है। हाँ, मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स आर कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स आर कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। एक्चुअली मार्कर प्रॉपर्ली चल नहीं रहा है तो इसलिए ब्लर दिख रहा होगा आपको। मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स आर कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का फॉर्मेट लिखूं, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स का होगा, ध्यान देना, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब तुमको पता है तुम्हारा मैट्रिक्स कैसा होता है, आपके मैट्रिक्स में एलिमेंट आता है स्मॉल a11, स्मॉल a12, स्मॉल a13, स्मॉल a21, स्मॉल a22, स्मॉल a23, स्मॉल a31, स्मॉल a32, स्मॉल a33। तो एलिमेंट्स के बदले कोफैक्टर्स प्लेस करो तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो कैपिटल A11 कोफैक्टर ऑफ A11, कैपिटल A12 कोफैक्टर ऑफ A12, कैपिटल A13 कोफैक्टर ऑफ A13, फिर कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, लास्ट में कैपिटल A33। So this is a cofactor matrix. Matrix obtained by the cofactors and matrix formed by the cofactors are called cofactor matrix. So cofactor निकालो हर एक का और उसको पुट करो इन प्लेस ऑफ एलिमेंट्स। तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आपका डेफिनेशन है अपना एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको डिनोट करते हैं हम लोग शॉर्टकट में एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। तो टॉपिक का नाम है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, शॉर्टकट में लिखते हैं एडीजे ब्रैकेट में ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और डेफिनेशन क्या बोलते हैं इसका, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ cofactor matrix, transpose of cofactor matrix is called adjoint matrix. Simple. cofactor matrix का ट्रांसपोज जो रहेगा ना उसको adjoint matrix बोलते हैं। So transpose of cofactor matrix is called adjoint matrix. Therefore, adjoint matrix of A is actually cofactor matrix का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। नो गाइस, ट्रांसपोज कैसे निकलेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का, आपके सामने ऊपर दिख रहा है वो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। आई होप कि सबको अच्छे से याद होगा कि ट्रांसपोज निकालने के लिए रोज एंड कॉलम्स को लोग इंटरचेंज करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स। हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं ना इसका, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम। सो A11, A12, A13, second row will become second column, A21, A22, A23, third row will become third column, A31, A32 and then last में A33। तो ये चार टॉपिक कवर किया हमने, माइनर, कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड देन एडजॉइंट मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 2 जो है उसमें 3-4 टॉपिक्स इसके ऊपर ही है। Find cofactors of the matrix, find adjoint of a matrix। तो इसके कुछ सम्स देख लेते हैं हम लोग। So I hope कि आपको ये चारों सम्स and we will solve 1 or 2 sums based on this, right? So अभी हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं और एक्सरसाइज में 2-3 सम्स इसके ऊपर है जिसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं up to adjoint of a matrix, up to adjoint of a matrix। कुछ पूछना है प्रथमेश? हाँ सर, एडजॉइंट मैट्रिक्स का नहीं समझा। देख एडजॉइंट क्या होता है, इधर देख, हम लोग ने ना ट्रांसपोज पढ़ा है। ट्रांसपोज कैसे निकलता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज। जब भी किसी भी मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं ना, रो को अगर कॉलम बना दिया ना तो बन जाता है ट्रांसपोज। अगर रो को आपने कॉलम बना दिया ना वो हो जाएगा ट्रांसपोज। तो अगर मैंने किसी मैट्रिक्स का, लेट अस टेक एग्जांपल, देखो समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं। मान ले कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए
और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। अब मेरे को इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज में क्या होगा? फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का हो जाएगा सेकंड कॉलम। क्या किया हमने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया। फर्स्ट रो को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को यहाँ पे सेकंड कॉलम बना दिया। तो जब रोज एंड कॉलम को इंटर करते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स में, तो हमको क्या मिलता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिलता है, जिसको ए ट्रांसपोज बोलते हैं। सिमिलरली इसके डेफिनेशन में ये बोला जा रहा है कि अगर तूने कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया, ये तेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स है, दिख रहा है? अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया तो जो मिलेगा उसको एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। तो इसका फर्स्ट रो देख a11 a12 a13, देखिए फर्स्ट कॉलम हो गया। इसका सेकंड रो देख a21 a22 a23 सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड रो देखो a31 a32 a33 थर्ड कॉलम हो गया। तो हुआ क्या? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन है, 11th में भी पढ़ा था हमने, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स। अभी एक सम सिखाऊंगा तो उसमें अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे सम पे मूव करते हैं। एक सम मैं कर रहा हूं, एक सम आप लोग करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। वी विल फाइंड नाउ कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट निकालते सीधा, ठीक है? हटा रहा हूं मैं इसको। अभी जब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट में हम लोग कोफैक्टर्स भी निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स भी बनाते हैं, और कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके एडजॉइंट भी बनाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैंने आपको पूछा कि एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल के दो, मतलब मैंने आपसे सब मांग लिया ना, मैंने आपसे माइनर भी मांग लिया, मैंने आपसे कोफैक्टर भी मांग लिया, मैंने आपसे कोफैक्टर मैट्रिक्स भी मांग लिया, और मैंने आपसे कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट मैट्रिक्स भी मांग लिया, ठीक है? तो लेट अस लर्न, मूव करेंगे और देखेंगे हम लोग सम्स बेस्ड ऑन कोफैक्टर मैट्रिक्स। ध्यान होना चाहिए सबका। क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 3, find the adjoint of following matrices. Find the adjoint of following matrices. एक सम मैं कर रहा हूं, दूसरा सम आप ट्राई करना। फर्स्ट सम है यहाँ पे 2 -3 3 5। तो इस सम में मैं आपको ना पूरा एडजॉइंट तक बताऊंगा, पूरा एडजॉइंट करेंगे, तो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है? 2 -3 3 5। क्या मांग रहा है क्वेश्चन? फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसका एडजॉइंट चाहिए हमको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम ले लो। तो लेट ए बी द मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स का नाम? 2 -3 3 5। ध्यान देना, 3 क्रॉस 3 आपको नहीं कर लोगे। 2 -3 3 5। कितने एलिमेंट्स है? 4। हर एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालो, फिर कोफैक्टर से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा। तो आप कोफैक्टर का फॉर्मूला पता है ना आपको? वी नो, क्या है फॉर्मूला? वी नो कैपिटल ए आई जे, वी नो कैपिटल ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये फॉर्मूला है, पता है आपको? कोफैक्टर का फॉर्मूला है कैपिटल ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। नाउ यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है, 4 कोफैक्टर निकलेंगे। तो पहला therefore a11, तो a11 का फॉर्मूला बनाओ। a11 इज इक्वल्स टू -1, i का वैल्यू भी 1 है, j का वैल्यू भी 1 है, तो -1 रेज़ टू 1 + 1 इंटू m11, ठीक है? अब गाइस -1 का पावर स्क्वायर है, तो 1 हो जाएगा ना वो, सो 1। और m11 कितना है देख लो, m11 पता ना, हाउ टू फाइंड माइनर, डिलीट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा? 5। सिखाया मैंने आपको स्टार्टिंग में। तो आंसर आएगा इसका 1 × 5 इज 5। होपफुली समझा सबको कैसे निकालते हैं माइनर।
is the value of the determinant obtained by deleting the row and column in which that element lies. तो A11 आया 5. Now second रहेगा अपना A12. A12 का फॉर्मूला क्या रहेगा? -1 raised to 1 plus 2 into M12. Now -1 का पावर ऑड है, तो आंसर कितना आएगा? -1. Now M12 कैसे निकालेंगे? M12 -3 है, इसका रो एंड कॉलम डिलीट हो, क्या बचेगा? 3 बचेगा. So -1 into 3, the answer is -3. फाइन. फिर आगे अपना नेक्स्ट रहेगा A21. तो A21 रहेगा -1 raised to 2 plus 1 into M21. So -1 का पावर 3. तो -1 का पावर 3 is -1 only. M21 3 है, इसके रो एंड कॉलम को डिलीट किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को, तो कितना बच रहा है अंदर? -3 बच रहा है. So -1 into -3 is again -1 into -3 is again 3. The last element is A22. So A22 कितना रहेगा? A22 रहेगा -1 raised to 2 plus 2 into M22. now -1 का पावर E1 है, कितना हो जाएगा? 1. M22 कितना रहेगा? 5. 5 के रो एंड कॉलम को डिलीट करके क्या मिलेगा? 2 मिलेगा. तो M into 1 into 2 is 2. एक चीज नोटिस किया आपने, जहां जहां पे I और J मिला के E1 था, जैसे कि A11 और A22, वहां पे माइनर का वैल्यू और कोफैक्टर का वैल्यू सेम आया. देखो माइनर भी 5 है, कोफैक्टर भी 5 है, माइनर भी 2 है, कोफैक्टर भी 2 है. बट जहां पे I और J को मिला के ऑड आया 1 plus 2 3, 2 plus 1 3, तो वहां पे माइनर 3 है तो कोफैक्टर -3 है, माइनर -3 है तो कोफैक्टर 3 है. मैंने आपको लिखा के दिया था if I plus J is even, cofactor and minor are same. If I plus J is odd, cofactor and minor are opposite in sign of each other. तो हम लोगों ने फिलहाल तो कोफैक्टर्स निकाल दिए सब जगह. मेरे पास कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट्स के आगे है. Now once you got cofactors, the next step is to form cofactor matrix. Therefore, cofactor matrix of A क्या करेंगे भाई? एलिमेंट्स की जगह पे कोफैक्टर्स का नाम डालेंगे. तो कोफैक्टर क्या रहेगा इसका? A11, A12, A21, A22. ताकि हमने एलिमेंट्स की जगह पे कोफैक्टर्स पुट किया. मैं इसका वैल्यू पुट करो ना, इसका वैल्यू पुट किया A11 कितना है? A11 5. A12 कितना है? -3. A21 कितना है? 3. फिर A22 कितना है? 2. जो कि आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स. जहां पे हमने कोफैक्टर्स पुट किया वो बन जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब तुमको क्या चाहिए? अब तुमको ट्रांसपोज चाहिए, और ट्रांसपोज निकालने में क्या मिलेगा? एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगा ना. क्या मिलेगा? एडजॉइंट मैट्रिक्स. सो therefore adjoint of मैट्रिक्स A, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज ले लो. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ 5 -3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ 3 2. दिस कंप्लीट्स द आंसर. By this way we find the adjoint of the following matrices. This is a method to find adjoint of the following matrices. I hope कि लोगों को क्लियर है ये सब अच्छे से, सबको श्योर समझ में आना चाहिए ये. I hope कि क्लियर है लोगों को. This is a way of finding adjoint of the following matrices. Done everyone? Clear everyone? सबको समझा? Yes sir. ठीक है. एडजॉइंट अभी 3 क्रॉस 3 का आप निकाल लोगे खुद से. 3 क्रॉस 3 का कैसे करना है समझ में आ गया. 9 के 9 एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका उल्टा करके ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट आ जाएगा. समझा पक्का? तो एक 3 क्रॉस 3 का देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. एक 3 क्रॉस 3 का भी एक दो करा देता हूं मैं. आयुष लैग हो रहा है तेरा, तेरा नेटवर्क इशू रहेगा. मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ यहाँ से बताओ मुझे. और किसी का लैग हो रहा है क्या? कुछ एक दो जन से पूछते हैं. प्रथमेश आपको आवाज बराबर आ रही है क्या? प्रथमेश? हाँ सर आ रहा है बराबर. और आपको बराबर दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर, पर यहाँ पर बारिश हो रही थोड़ा नेटवर्क इशू रहेगा आपका, हो जाएगा ठीक. रुक जाओ 2 मिनट. सबका थोड़ा बहुत लैग होता है वो बीच में नेटवर्क. यहाँ पे. फिलहाल समझ में आ गया ये. हाँ अभी मैं आगे जो है वो 3 क्रॉस 3 का एक सम करा रहा, जिसको आप घर पे पूरा कंप्लीट करोगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. इसका स्क्रीनशॉट ले लो.
अब आगे जो मैं 3 क्रॉस 3 का करा रहा हूँ उसमें एक सम कराऊंगा और बाकी मैं आपको फॉर्मेट समझा दूंगा, आप घर पे उसको ट्राई करोगे। सिर्फ एक सम कराऊंगा उसका मैं, जो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ। लेट अस टेक मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सम, इसका सेकंड सम। तो बोल देते हैं इसको, लेट ए बी द मैट्रिक्स विद एलिमेंट कितना 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली कितने एलिमेंट्स है? 9 एलिमेंट्स है। तो 9 कोफैक्टर्स निकालना होगा आपको। कितने कोफैक्टर्स? 9 कोफैक्टर्स। नाउ यूज द फॉर्मूला। व्हाट्स द फॉर्मूला? कैपिटल Aij is equals to -1 raised to I plus j into Mij। ये फॉर्मूला आपका। तो पहले A11 निकालेंगे। तो नाउ फर्स्ट टू फाइंड A11। नाउ A11 कैसे आएगा? A11 का फॉर्मूला आपको पता ही है। A11 is -1 raised to 1 plus 1 into M11। तो -1 का स्क्वायर इज 1। M11 कैसे निकलेगा? डिलीट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने का मिल रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने का कितना मिल रहा है? 3 5 0 -1। इसको सॉल्व करो, 1 को भूल जाओ बाहर। 3 into -1 -3, 5 into 0 is 0, तो -3 - 0 is -3। तो आपको A11 आ गया। सेम वे A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। एक और निकाल लेता हूं मैं। लेट अस फाइंड A31। सो A31 कैसे मिलेगा? -1 raised to 3 plus 1 into M31। तो यहाँ पे M31 को नहीं, -2 है ना, इसके रो एंड कॉलम को डिलीट करो। सो -1 to the power 4 is 1। M31 इसके रो एंड कॉलम को डिलीट करके कितना आएगा? -1 2 3 5। 1 को भूल जाओ, 1 into -5 3 2 6 -6। आंसर कितना आएगा? -11। इस तरीके से हम लोग हर एक का माइनर फाइंड करेंगे। तो वंस यू गेट हर एक का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। हर एक बार आपको कोफैक्टर मिला एक का, तो आप अगला क्या बनाओगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए में क्या आएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए में 9 एलिमेंट्स आएंगे। आपको पता है कौन कौन से? वो 9 एलिमेंट्स कौन कौन सा रहेगा? वो 9 एलिमेंट्स रहेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें वैल्यू पुट करोगे, आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। एंड वंस यू गेट कोफैक्टर मैट्रिक्स, आगे आपको क्या करना है? एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। कैसे निकालते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोग? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये सब आप कंप्लीट करोगे खुद से। आई होप कि लोगों को इतना पार्ट समझ में आया। हम लोगों ने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में कि हाउ टू गेट एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आते आते हम लोग ने इनवर्स का डेफिनेशन देखा। इफ A is a square matrix of order m and if there exists another matrix B of same order, then AB is equals to BA is equals to I, where B is called inverse of A, symbolically represented as A inverse। 8 का रेसिप्रोकल अगर 1/8 होता है तो A का इनवर्स होता है A inverse, right? Whenever we multiply a number by its reciprocal, we get 1. Similarly, when we multiply a matrix along with its inverse, we always get an identity matrix, which takes us to A into A inverse is equals to A inverse into A is equals to I। याद रखना ये। फिर आगे हम लोगों ने चेक किया कि आपका मैट्रिक्स तभी इन्वर्टिबल होगा जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। मैट्रिक्स A is invertible if determinant of A is not equal to 0। मींस A इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, मतलब आपका मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होना चाहिए। बहुत कंफ्यूज कर रहा हूं मैं शायद। If determinant of A is equal to 0, A inverse does not exist। If determinant of A is not equal to 0, A inverse exists। इनवर्स निकलना मतलब इन्वर्टिबल होना। तो अगर A इनवर्स निकलता है मतलब उस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल बना सकते हैं हम लोग। और अगर A इनवर्स नहीं निकलता है तो उसका इन्वर्टिबल होना नामुमकिन है। फिर आगे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल।
सो उन्होंने डिटरमिनेंट निकाला, स्टार्टिंग के दो केस में डिटरमिनेंट 0 आया तो वो नॉन इन्वर्टिबल है। थर्ड वाले केस में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आया जो कि 1 होता है, मतलब वो इन्वर्टिबल है, मतलब सी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर आगे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा इनवर्स कैन बी फाइंड बाय टू मेथड। द फर्स्ट मेथड इज इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड एंड द सेकंड मेथड इज इनवर्स बाय एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड पे मूव किए हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा माइनर ऑफ एन एलिमेंट। Minor of an element is the value of the determinant obtained by deleting the row and column in this that element lies. Minor of element aij is denoted as mij. Then second we learn cofactor. Cofactor of an element is denoted as capital Aij. Capital Aij is equals to -1 raised to I plus j into mij, where I belongs to row number, j belongs to column number, or mij is nothing but minor of element aij. फिर हम लोगों ने पढ़ा कोफैक्टर के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया। कोफैक्टर मैट्रिक्स से बनता है मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोगों ने एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाया। एडजॉइंट मैट्रिक्स से बनता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स। फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज का दो सम सॉल्व किया, एक 2x2 का जो मैंने करा है, 3x3 का मैंने फॉर्मेट बता दिया है, आप ट्राई करो इसको। तो मुझे अगले लेक्चर में होमवर्क चाहिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आप सबमिट करोगे आज स्टाफ को। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। आई होप कि पहले का एक्सरसाइज आप सबमिट कर चुके हो। एक्सरसाइज 1 पूरा आप सबमिट कर चुके हो। एक दो सम उसमें नहीं भी आने का तो उसको डाउट में मुझे बताओ। यू कैन टाइप द डाउट्स इन द ग्रुप इटसेल्फ। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको पूरा सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। फर्स्ट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट, सेकंड इज टू फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड थर्ड इज टू फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स। ट्राई कर लो इसको, ठीक है। वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर में, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।